In today's world, stress and anxiety has become an almost inevitable part of daily life, significantly impacting the overall health and well-being of individuals. Disorders are currently the most common mental health condition globally, affecting over 301 million people. This persistent combination of stress and anxiety doesn't just take a toll on mental health, it also has a serious implication on cardiovascular health. In this session, we will shed light on this critical topic, how stress and anxiety can adversely affect heart health. We are honored to welcome Dr. Sanjeev K. Sharma, a renowned interventional cardiologist, to today's session. Dr. Sanjeev will explore the intricate connection between mental and cardiovascular health and share effective strategies to manage both stress and heart related risks. Dr. Sanjeev Sharma is a MD gold medalist and holds a doctorate of medicine in cardiology from the prestigious All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He is a distinguished fellow of several leading international cardiology society, including American College of Cardiology, the European Society of Cardiology, and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. Dr. Sanjeev Sharma is a distinguished key opinion leader in interventional cardiology, is widely regarded as one of the most eminent speaker in Rajasthan. This year, he has also been elected as a secretary of the CSI in Rajasthan. This Rajasthan chapter, further cementing his leadership and influence in the field. With decades of experience in managing complex cardiovascular conditions, Dr. Sanjeev is currently serving as the chairman of interventional cardiology at Eternal Hospital, Jaipur. His key areas of expertise include complex coronary angioplasties performed via the radial route and peripheral angioplasties, among others. So, doctor, let's get started with today's session and questions. सो मेरा पहला सवाल डॉक्टर आपके लिए ये रहेगा कि हाउ एग्जैक्टली कैसे स्ट्रेस और तनाव अपने हार्ट पे अपने हृदय पे अफेक्ट होता है. Yeah, good evening, listeners. First of all, I would like to appreciate efforts by AstraZeneca and Heart Mitra for bringing those important medical issues for each and every one of us. और आज का इन्होंने बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक रखा है, हाउ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अफेक्ट्स योर हार्ट हेल्थ. जैसे हम मानते हैं कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट है जो कि हर किसी व्यक्ति को होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है अबाउट डे टू डे एक्टिविटी. लेकिन हम किस तरह से उसको मैनेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारे को इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है या नहीं होता है. अब ये जो है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस हमारे को किस तरह से अफेक्ट करते हैं. देखिए, शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी और स्ट्रेस हम सबकी ज़िंदगी में, जैसे कोई एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट होता है तो उसको हल्का सा एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, दैट इम्प्रूव्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. ऐसे ही जो एथलीट होता है उसको भी हल्का सा सबकॉन्शियस एंग्जाइटी होती है, तो दैट इज़ शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी इज़ गुड फॉर इम्प्रूविंग एंड एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. लेकिन ये जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी लंबे समय तक रहती है तो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस लाती है, और जिसकी वजह से हमारे में उसके हार्मफुल इफेक्ट दिखते हैं. फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की, तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लीड्स टू इंक्रीज इन द हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन. और ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो हार्मोन है हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और इसी के साथ में कई बार हम हार्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा और कई बार इरेगुलर भी आती है जिसको एरिथमिया कहते हैं. साथ ही में जब एंग्जाइटी और स्ट्रेस लंबे समय के लिए रहते हैं तो हमारी जो शरीर की जो नसें हैं, जो वेसल्स हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, यानी सूजन आती है, और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं जिसको हम प्लाक कहते हैं हमारी हार्ट की नसों में, वो भी धीरे धीरे बिल्डअप होने लगते हैं. स्पेशली जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि प्री एग्जिस्टिंग, जिनको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उन व्यक्तियों में स्ट्रेस रिलेटेड ये जो चेंजेस काफ़ी कॉमनली आते हैं. इसी के साथ में स्ट्रेस की वजह से हमारे जो नसों के अंदर स्पैज़म, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन है, वो भी काफ़ी कॉमन होता है. इसलिए कई बार आपको हेवीनेस इन चेस्ट और कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी फील होता है. तो ये जो सारे फैक्टर, इसके अलावा
स्ट्रेस जब लंबे समय तक रहता है तो हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है, ब्लड में जो थक्का जमने की जो संभावना है, हमारी जो प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि हमारे नसों में क्लॉट बनाती है, उनकी स्टिकीनेस भी बढ़ जाती है और वो क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, साथ ही में हमारी नसों में इन्फ्लेमेशन आना और ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ना, ये सारे फैक्टर्स जब होते हैं, और साथ ही में अगर आपकी एज फैक्टर है, आपको साथ साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल है या स्मोकिंग है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के आपको हार्ट की तकलीफ होने की, जो हार्ट अटैक्स हैं, एंजाइना है और हार्ट फेलियर के जो रिस्क को बढ़ाते हैं। ये तो आपको ये बताया मैंने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब शॉर्ट में मैं बिहेवियरल इफेक्ट, जब एंग्जाइटी और स्ट्रेस आप में कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी लाते हैं। स्ट्रेस के दौरान आपको ओवर ईटिंग की टेंडेंसी होती है, कईयों को अल्कोहल की तरफ जाते हैं, कई लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, अपने रूटीन में जो रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो आप स्किप करने लगते हो। तो सारे फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल एज वेल बिहेवियरल फैक्टर्स, ये सब साथ में मिलकर के आपको हार्ट या कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाते हैं। हाँ डॉक्टर, और जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसके वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है पेशेंट को? देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को स्ट्रेस और एंजाइटी से हार्ट अटैक नहीं होते हैं। अच्छा। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है, जैसे पहले से आपको हार्ट की जो डिजीज डायग्नोज्ड है, जैसे पहले एंजियोप्लास्टी हुआ है या पहले बाईपास हुआ है या पहले एंजियोग्राफी के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस मेंशन किए हुए हैं या सीटी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज हैं, या फिर आपको जो हार्ट के जो रिस्क फैक्टर्स आप में हैं, लाइक आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, आप स्मोकर हैं, या आपके परिवार में माता पिता भाई बहन को यंग हार्ट अटैक की रिस्क रही है, अगर ये सारे रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो ये एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिस्क को बढ़ाता है, हार्ट अटैक की रिस्क को और एंजाइना के रिस्क को बढ़ाता है। लेकिन अगर एकदम हेल्दी इंडिविजुअल है, कोई 28 साल का या 30 साल का, जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अपरेंटली हेल्दी है, रेगुलर वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज भी करता है, उसको कोई शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी होती है रिलेटेड टू एनी प्रोफेशनल स्ट्रेस और योर एजुकेशनल स्ट्रेस, वो एकदम से हार्ट अटैक नहीं बढ़ाते। तो ये मैसेज ये जाना चाहिए कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी स्ट्रेस से हार्ट अटैक की संभावना नहीं होती है, लेकिन आपकी एज के हिसाब से आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं या आपको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की डिजीज है या एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है, तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपको हार्ट अटैक की रिस्क की संभावना को बढ़ाता है। तो इस पे मुझे आपको एक सवाल करना है। जब अपन स्कूल में रहते हैं या जब कोई एग्ज़ाम देना होता है सबको, तो तभी से बचपन से इंसान स्ट्रेस लेना शुरू करता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये स्ट्रेस कैसे कंट्रोल कर सकता है यंग पॉपुलेशन, ताकि आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम्स उनको ना आए। देखिए, बहुत ही एक रिलेवेंट जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड हम ये जाने कि किस तरह से हमको लॉन्ग टर्म में हमारे को मेंटली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रेस फ्री कैसे रहना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये ना, हमारी जो लाइफस्टाइल वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। हमको डिसिप्लिन रखना होगा। डिसिप्लिन इन द सेंस कि हमको सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है, स्लीप हाइजीन शुड बी मेंटेन। सेकेंड, आपका जो दिन की शुरुआत है वो आपको बहुत ही एक रिलैक्स वे में होनी चाहिए। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू शुड बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ें सोचने लगे मेरे को आज आज क्या करना है। तो फर्स्ट आवर ऑफ द डे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर डे। उस टाइम पे आप यू शुड गो इनटू द नेचर, डू अ वॉक, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, yoga, meditation, avoid all kind of digital devices, no mobile, nothing. You need not to see your missed calls or text messages or emails in early morning or the first hour of the day. और अपना एकदम वो टाइम है, आप वो आपके मी टाइम, 1 hour इज फॉर यू, फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। So going close to the nature, walking, doing aerobic exercise, or doing a yoga, having a mindfulness meditation, deep breathing exercises. तो योगा में प्राणायाम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो प्राणायाम के दौरान हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग से हमारी जो वेगल टोन है वो इंक्रीज होती है और जो सिंपैथेटिक टोन है वो डिक्रीज होती है। जब सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज होती है तो हमारे को हार्ट रेट स्लो डाउन होती है,
हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, मेंटली वी फील वेरी क्लियर एंड अलर्ट, और हमारी बॉडी की पूरी मैकेनिज्म, इवन हमारा स्टमक जो है वो भी काफ़ी रिलैक्स होता है, क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस से स्टमक अपसेट और आप देखेंगे एसिडिटी के इश्यूज भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर मॉर्निंग आवर्स में आप ये एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ में चलेंगे, एंड देन यू प्लान योर डे कि जो भी काम करना है वो सही टाइम स्लॉट्स के हिसाब से आप टाइम पे करें। अगर कोई आगे पीछे होता है तो डोंट टेक अनड्यू स्ट्रेस, वो थोड़ा सा आप आगे पीछे उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग योर डे इन अ प्रॉपर वे, sleeping properly, getting up in a time, regular same time, and having time for exercise, yoga, meditation, and having a healthy meal. जो 3 meals लें आप healthy और your balanced meal लें, और take care of yourself, and spending time with the family and friends also de-stresses you and make you mentally very strong. ऑल्सो डॉक्टर, आई वुड लाइक टू हैव एन ओपिनियन। आपसे एक मैं राय जानना चाहती हूँ। आजकल पेरेंटिंग स्किल ऐसा हो गया है, अगर बच्चा रो रहा है तो उसको टेक्नोलॉजी में लाइक लैपटॉप दिखाया जाता है या फ़ोन दिखाया जाता है। तो आपको इस चीज़ पे आपको कुछ एक व्यूअर्स जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ टिप देना है कि इसके वजह से उनको स्ट्रेस आगे जाके मैनेज करने को प्रॉब्लम होगा बच्चे को, या ऐसे कुछ आपको बताना है इस पे, इस पॉइंट पे? हाँ, नहीं, ये भी आपने जैसे बताया कि जो पेरेंट्स और यंग जो किड्स हैं, देखिए ये जब आप प्रोफेशनल्स होते हैं, आपके पास में टाइम कम होता है, तो आप जब भी बच्चे थोड़ा-सा कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब, तो आप उनको डिजिटल डिवाइसेस देकर के आप उसको थोड़ा-सा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये काफ़ी इनफैक्ट कंट्रीज़ में इस तरह का हो गया कि बच्चों को मेरे ख्याल से 6, 7, 8 इयर्स की एज तक डिजिटल डिवाइसेस स्पेशली मोबाइल फ़ोन वो देना अवॉइड करें। देखिए, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस हैं वो एक शॉर्ट टर्म आपको एक कुछ आपने उसमें कार्टून कोई फ़िल्म देखा या फिर कोई भी एनी काइंड ऑफ एनिमेशन फ़िल्म देखी और आप उससे डाइवर्ट हो गए, लेकिन यू आर नॉट जो एक वन टू वन जो इंडियन कल्चर में रहा है, जब भी फैमिलीज में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ में रहते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में किड्स जो इंटरेक्ट करते हैं, तो और जिस तरह से वो जो भी स्टोरी टेलिंग हुआ या फिर उनके साथ में बैठ के कुछ खा पिया, तो वो मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और जब भी ऑन द कॉन्ट्ररी जो न्यूक्लियर फैमिली में अभी आजकल रहते हैं, यंग प्रोफेशनल, उनके पास टाइम नहीं है और बच्चों को गैजेट्स और ये देख करके वो लोग सोचते हैं कि उसको देखकर ये उस मूवी दिखा दो या कुछ दिखा दो तो वो खाने लग जाएगा या फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, ही विल नॉट क्राई, बट इन अ शॉर्ट टर्म दैट इज ओके, but in long term that will affect his emotional well-being and also his ability to cope up with the stress in the future. So going close to the nature, open air में जाना, अपने अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में मिलके आपको टाइम स्पेंड करना, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना, और इन सब से आपकी हेल्दी वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल एंड ओवरऑल वेलबींग आती है, और इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट बी माइंडफुल, आपको ही माइंडफुल होना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर माई सेल्फ, माई किड्स एंड फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मैं मेरा और एक अगला सवाल ये है कि व्हाट आर सम कॉमन साइंस, कि ये क्या साइंस है जिसके वजह से स्ट्रेस अपने हार्ट को हार्म करता है? देखिए, जब भी कभी हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो कुछ बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे अब मैंने बताया आपको कि जब भी हम एंजाइटी या स्ट्रेस वाली फेज से हम निकलते हैं, तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होने लगता है, हमारा एड्रेनलिन लेवल हाई होने लगता है, जिससे हमारी हार्ट रेट थोड़ा फास्ट होने लगती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी में आपने कई चेंजेस महसूस करे होंगे, आपने खुद ने भी, जैसे हमारे हैवीनेस इन हेड आ जाती है, सिर थोड़ा भारी होता है। सेकेंड, बॉडी और मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है ना, मसल एक्स और मसल पेन होने लगते हैं। और थर्ड, हमारा स्टमक भी कई बार अपसेट होता है। आपने देखा है कि एग्जाम टाइम में थोड़ा सा पेट में भी गर्गलिंग होगा या फिर कुछ लगेगा कि अनईजीनेस इन स्टमक, हेवीनेस इन हेड, स्टिफनेस इन मसल्स, बॉडी एक्स, ये सब चेंजेस आने लगते हैं। और कई बार है ना, आपका अटेंशन स्पैन, जो एक फोकस करने की जो क्षमता है, आपकी मेंटली अलर्ट होने की क्षमता है, वो भी धीरे धीरे चल जाती है। यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग, देन यू, है ना, ये सारे के सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस भी आने लगते हैं। और फिर आप यू लुक फॉर द अदर थिंग्स टू सेटल डाउन। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को पहचाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय विच यू कैन गेट इमीडिएट रिलीफ इज बाय सिटिंग क्वाइट एंड डू अ डीप ब्रीदिंग, Yes. focus on your breathing and just cool down
mentally relax, avoid anything in your mind. आप जब सोचना बंद करते हैं, ब्रीथिंग ब्रीथ पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे आप फोकस करेंगे राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, यू फील वेरी इजी एंड रिलैक्स, मसल जो स्टिफनेस चली जाएगी, माइंड भी क्लियर होगा, यू फील बेटर. तो इंस्टेंट your relaxation technique is do a deep focus on the breathing, do a deep breathing, and that will relax you, that will cool down, reduces your heart rate, reduces your blood pressure. थैंक यू डॉक्टर। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस अपने को हेल्प करते हैं स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए और हार्ट प्रोटेक्ट करने के लिए? और अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं तो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड क्या होने चाहिए, लाइक, और फॉर अडल्ट्स ऑल्सो? हाँ, तो लाइफस्टाइल चेंजेस हम सब इररेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप हमारे लिए जरूरी हैं. नंबर वन विच आई reiterate number of times, go close to the nature, है ना. व्हेन यू गो टू क्लोज टू नेचर यू ऑलवेज फील गुड, है ना. देखिए हमारे पास में इंडिया में इतने अच्छे डेंस पार्क्स अवेलेबल नहीं है. तो पूरी दुनिया में जो हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे देर आर एरियाज वेरी क्लोज बाय, यू हैव वेरी गुड ग्रीन पैच और अच्छे पार्क्स बने हुए अच्छे हैं. अब जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, हमारे भी अब गवर्नमेंट ने काफ़ी इस चीज़ फोकस किया है, दे हैव मेड इट वेरी मैंडेटरी टू हैव अ ग्रीन पार्क्स और ये ग्रीन पैचेस डेवलप किए हैं. गो क्लोज टू द नेचर. अगर आप मॉर्निंग में अगर आप जाएं और आपके क्लोज पार्क है, यू गो टू द, और जो भी कुछ करना है आपको, एक्सरसाइज, वॉक, breathing exercise or any aerobic sport you want to play, go over there. So go close to nature. Number two, regular schedule your good time for the aerobic activity, at least 30 to 45 minutes a day, which is easily possible. चाहे कितना भी आप बिजी हो, 24 आवर्स में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स अपने लिए मॉर्निंग आवर्स में फिजिकल एक्टिविटी के लिए और एरोबिक एक्सरसाइज के लिए आप निकाल सकते हैं, योगा के लिए निकाल सकते हैं, है ना. वो आपको स्केड्यूल आपको ही करना पड़ेगा, है ना. यू हैव टू लीड योरसेल्फ. और उस स्केड्यूल किए हुए टाइम में आप या तो ब्रिस्क वॉक करिए, विच इज द इजीएस्ट वे. यू जस्ट नीड अ पेयर ऑफ शूज, गुड शूज, दैट्स ऑल. और आप जहाँ वॉक करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, यू हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड दैट यू एंजॉय ऑल्सो एंड स्टार्ट मेकिंग ए गुड हैबिट. और जो लोग खेल खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं, चाहे बैडमिंटन है या लॉन टेनिस है, एनी काइंड ऑफ ए स्पोर्ट्स यू लाइक टू एंजॉय इन द मॉर्निंग, यू कंटिन्यू दैट. सो गोइंग क्लोज टू नेचर, scheduling aerobic activity of your choice. Third is a yoga or meditation. Yoga is a good stretching exercise. तो it's a good stretching exercise. और साथ ही में उसमें अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम ऐड कर देते हैं, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर एंड कूल्स योर माइंड, improve your focus for yourself. So it's very important. And then your sleep schedule, जैसे मैंने बताया कि आप अपना जो 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत जरूरी है. स्लीप जब आपके डेफिसिट होती है तो आपको एक स्ट्रेस वाला फैक्टर शुरू आता है. इट्स अ वाइस एंड वर्सा. इफ यू schedule a good amount of sleep in your routine, good sleep 7 to 8 hours, it reduces your stress and also makes you feel better and good focus. And next is have a good say habit, your hobbies time. हॉबीज में आपको जो भी पसंद है in the evening hours, whether it's listening to good music or playing something or reading good books which really you enjoy reading. तो आप चाहे बुक रीड करिए या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप चलाते हैं वो करिए, आप गुनगुनाते हैं गाना गाइए, गार्डनिंग पसंद तो गार्डनिंग करिए, वट एवर इज फीजिबल एंड मेक्स यू फील हैप्पी. You should schedule at least 15-20 minutes time for yourself in the evening hours. And the next one is and spend good amount of time with your family and friends. हमारी हम लोग कितने यंग प्रोफेशनल्स हैं, टारगेट्स हैं, वी कम लिटिल लेट इन द इवनिंग, हैव अ डिनर वेरी लेट एंड गो टू द बेड. So this is not right. Come a little early, have a 15-20 minutes for your family, your spouse or your kids and your your parents. Spend at least 15-20 minutes time with them. और वो आपको इतना अच्छा लगेगा and you feel very good before going to bed. And Yeah. before going to bed, you have a 10 to 15 minutes of cool down time where you are away from the devices, gadgets, and you feel mentally relaxed so that you have a good sleep hygiene, you will have a good sleep, and next day you will feel full of energy and go to the aerobic activity. This is how you can cool down. Close to nature, regular exercises which increase the endorphins and make you feel better, and the good your organized schedule, evening time for yourself, for your hobby, and also for family and the friends. That's the way to go to reduce the anxiety and stress in you. Thank you so much, doctor. But I would also like to know in detail, when people cannot sleep at night, what should they do and how should they cope that stress
of not getting sleep at night so that they can improve their sleeping Yeah. techniques. Yeah. हाँ, this is a very important point. देखिए, sleep disorder is affecting large number of people worldwide. Americans में देखोगे तो आप मेरे को लगता 30 to 40% patients, और हमारे सेम विद इंडिया, I can be very sure 40 to 50% all over the world they feel this insomnia or lack of sleep, good sleep ये नहीं आती है. अब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जब शुरुआत होती है स्लीप डिस्टर्बेंस की, ये मानना चाहिए कि दिस इज नॉट ए डिजीज और डिसऑर्डर, ये कोई बीमारी नहीं है. शुरुआत के दिनों में, बाद में हो जाती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इफ यू मैनेज इट इन द अर्लियर फेज ऑफ योर स्लीप इश्यूज, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो. पहली चीज, अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग, यू कैन गेट ओवर इट, है ना. क्योंकि वो लोग सोचते हैं आज स्लीप नहीं आई है, आज नींद अच्छी नहीं आई तो कल भी नहीं आएगी, तो यू गेट इनटू द विशियस साइकिल. सेकंड, कभी भी अगर रात को सोने से पहले मेंटेन गुड स्लीप हाइजीन. कोई भी वॉलेंट डिस्कशन या वॉलेंट मूवी या फिर कोई भी चीज जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस देती है, यू आर मतलब कोई फाइनेंशियल पार्ट है, कोई भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इश्यू है, जो कि वो अवॉइड डिस्कसिंग इन द लेट इवनिंग आवर्स और बिफोर गोइंग टू बेड. And then in the sleep, do a deep breathing before going to sleep, at least for 5 to 10 minutes time. Just sit down quiet, lie down quiet, focus on your breathing, do a breathing exercise, deep breathing exercise, cool down your mind and relax your body from top to bottom. You feel better and then you go to sleep. और आप रात को सोते हुए अगर आपकी नींद खुलती है, सपोज आपको 2-3 बजे का अगेन अगर आपको स्लीप डिस्टर्ब हुई है, तो डोंट थिंक कि भाई यार अब मेरे को दोबारा नींद नहीं आएगी. ये क्या होता है कि विशियस साइकिल होता है. हम सोचने लगते हैं यार स्लीप अभी मैं नींद में उठ गया हूँ, और डोंट लुक एट योर क्लॉक और योर मोबाइल फोन वॉच व्हाट इज द टाइम, है ना. वो आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ाता है, वो दोबारा से सोने की जो है चांसेस वो कम होते हैं. डोंट लुक एट योर टाइम, आराम से करो, डीप ब्रीथ करो, ब्रेथ पे फोकस करो एंड अवॉइड थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. डोंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे कि ये चीज मेरे लिए पेंडिंग है, दिस इज द स्केड्यूल फॉर टुमारो. देन यू गेट इनटू द साइकिल एंड यू हैव डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep नेक्स्ट टाइम. तो आपको एकदम सोचना है कि तो नॉर्मल है, दिस इज नॉट abnormal, दिस हैपेंस विद एवरीवन. डू अ डीप ब्रीदिंग and avoid thinking about anything, and you can definitely you can fall asleep very easily. थैंक यू सो मच. क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से अपने हार्ट में परमानेंट डैमेज होता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से ये मैंने बताया कि बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं. लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहता है तो हमारी बॉडी में थोड़ा इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे आपने देखा ना, सीआरपी लेवल आजकल हमारे हेल्थ पैकेज में होता है, सीआरपी इज हाई, ये हाई. तो इन एडिशन टू अवर ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, और हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ऑल्सो, इन ये फैक्टर्स सारे सारे जो मैंने बताए, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं वेसल्स में. और स्ट्रेस की वजह से इंक्रीज कॉर्टिसोल होता है, इंक्रीज एड्रेनलिन होता है, बॉडी में हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन होता है, दैट ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन अवर हार्ट वेसल्स. और ये प्लाक बिल्डअप करने की टेंडेंसी करता है, लेकिन नॉट इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, only in the patient with the pre-existing cardiac or heart risk factors, and also the patient who are a known heart disease patients who have undergone angioplasty or the bypass surgery, उनमें ये इन सब चीज़ों की रिस्क आपको ज़्यादा होती है. तो आपको ये मानना कि ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अफेक्ट करता है, डेफिनेटली स्ट्रेस अफेक्ट करता है. आपको अगर प्री एक्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप प्री एक्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है तो आपकी रिस्क ज़्यादा होती है. अगर आपको नहीं है तो भी लॉन्ग टर्म, अगर सपोज 10-20 ईयर्स में आपको क्रॉनिक स्ट्रेस चला है, तो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज, आपको कार्डिक इश्यूज, आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई डायबिटीज होनी चाहिए, क्योंकि कॉर्टिसोल भी शुगर बढ़ाता है, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन भी आपको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं. तो ये सारे दीज आर द ऑल द फैक्टर्स लीड्स टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट इन द फ्यूचर. एक मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि सडन अनकस्टम्ड स्ट्रेस, एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस होता है, तो उससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ट की कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी. तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि जापानीज ने को जापान में डिस्कवर किया था. वो क्या होता है कि जैसे किसी को फैमिली में बहुत कोई लॉस हुआ, मतलब फैमिली मेंबर्स, मतलब कोई फैमिली मेंबर है मेट विद एक्सीडेंट, और 2 फैमिली मेंबर सडन डेथ हुई है, इतना इमोशनल स्ट्रेस हुआ, या कोई क्लोज नियर डियर वन ही
एक्सपायर्ड, मतलब कोई इंस्टेंटली जिसको पहले एक्सपेक्ट नहीं करते, तो सडन इमोशनल स्ट्रेस हुआ या कोई सडन फिजिकल स्ट्रेस हुआ, जैसे मैराथन, मतलब कोई अनएक्सटेंड फिजिकल स्ट्रेस हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट एकदम डायलेट हो जाता है, हार्ट एकदम कमजोर हो जाता है, हार्ट की पंपिंग एकदम रिड्यूस हो जाती है ना। उसको इसको कार्डियोमायोपैथी, इसको बोलते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी। हार्ट एकदम वीक हो जाता है, हम देखते हैं हार्ट की पंपिंग रहेगी 20-25%, हार्ट एकदम एनलार्ज हो गया, पेशेंट एकदम शॉक में चले गया। तो और उनका हम देखते हैं क्या फैक्टर था, मालूम पड़ता है कि सडन कोई इमोशनल स्ट्रेस हुआ या फिजिकल स्ट्रेस हुआ। तो ये जो कंडीशन है ज्यादातर केस में रिवर्सिबल होती है, कुछ दिनों में और वीक्स में ये ग्रेजुअली रिकवर हो जाती है। तब तक के लिए हार्ट को सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस, हार्ट को सपोर्ट करने वाली मेडिसिन देते हैं हम, और पेशेंट को कई बार हमारे को हार्ट सपोर्ट की जो और भी मेडिसिन और वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। लेकिन विद टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, हार्ट अपने आप रिकवर करने लगता है, जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट चले गया, तो हार्ट वापस से पंपिंग नॉर्मल हो जाती है, हार्ट एकदम से ज्यादा। यंग पेशेंट में भी काफी देखने को मिलता है। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी इज अ सडन इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस से हार्ट को वीक हो जाता है, और ये जो कंडीशन है रिवर्सिबल होती है, और कुछ हफ्तों में ही हार्ट वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर, आपने मुझे बोला था कि कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं जब लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। तो आप कोई टेस्ट अपने व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं कि आप अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ले ही रहे हो तो ये टेस्ट आप कर लो, ताकि आपको पता चले कि आप अपने हार्ट के कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर सकते हो? कोई टेस्ट करना ज़रूरी होता है? देखिए, जहाँ तक फिटनेस वाले टेस्ट हैं, हम सभी को कहते हैं कि एक टाइम था हम बोलते कि 35-40 ईयर्स के बाद में यू टू गेट ऑल द टेस्ट, लेकिन आज हम उसी को हम 20-25 ईयर्स पे आ गए हैं, जिसमें कि हमारा ब्लड प्रोफाइल है, फास्टिंग लिपिड है, फास्टिंग ग्लूकोज है, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट्स है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हमारा HbA1c, यूरिन एग्जामिनेशन, दी अदर सिंपल ब्लड टेस्ट हैं। और फिर एक बार आप यू जब वंस यू रीच 30 ईयर्स, आजकल हम बोलते हैं कि ECG और आप एको भी एक बार करवा लीजिए, कोई प्रीएग्जिस्टिंग कार्डिक कंडीशन मालूम पड़ती है। और कई बार हम बताएं आप स्ट्रेस टेस्ट एंड ट्रेडमिल टेस्ट भी कर लो। तो दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो कि एक कार्डिक पैकेज के नाम से पूरे सारे लीडिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक आपका फिटनेस का टेस्ट है। अगर वो सब कुछ ठीक रहता है तो 30 ईयर्स के बाद में एवरी 5 ईयर्स करा सकते हैं। वंस यू रीच 40 ईयर्स, देन एवरी ईयर यू शुड गेट ऑल दीज फिटनेस टेस्ट, विच इंक्लूड्स ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ICG, एको, ट्रेडमिल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट। तो इनसे आपको अपनी फिटनेस का आइडिया हो जाएगा। और साथ ही में देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन इन्वेस्टिगेशंस को कराने के साथ साथ में आपको जो भी आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें एक्सपर्ट एडवाइस को लेना जरूरी है। जो भी सपोज आपका लिपिड बेड कोलेस्ट्रॉल आपका फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको एड्रेस करना है लाइफस्टाइल से, डाइट से, एक्सरसाइज से। और अगर आपको कोई एक्सपर्ट या आपको फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं मेडिसिन लेनी है, तो डोंट रन अवे फ्रॉम मेडिकेशन, क्योंकि ये मेडिकेशन जो आप अभी लेंगे ये आपको 20 साल बाद में होने वाली तकलीफों से बचाएगी। कई बार लोग सोचते हैं यंग एज में कुछ अब मेरे को ग्लूकोज लेवल बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या BP हो गया तो व्हाई शुड आई स्टार्ट मेडिकेशन। ये जानना जरूरी है कि अगर इस मेडिसिन को अगर अवॉइड किया तो जो बीमारी आपको 70-80 ईयर्स में होने वाली है वो हो सकता है आपको 50 ईयर्स में परेशान करे। तो ऑलवेज फॉलो द एक्सपर्ट एडवाइस रादर देन आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले कोई बोले कि यार तुम्हारी यंग एज है 40 ईयर से, अभी से दवा लोगे तो कब तक लोगे। ये बहुत कॉमनली हम अपनी OPD प्रैक्टिस में देखते हैं कि साहब अभी से लूंगा तो कितने टाइम है। उनको बोले ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये लोगे 20 साल ज्यादा जियोगे, नहीं लोगे तो है ना। इनिशियली वी ट्राई विद द लाइफस्टाइल, दैट इज अ डाइट एंड एक्सरसाइज, बट if you have a significant elevation of BP, cholesterol, glucose, you should take the advice of experts. Whatever they recommend you, you should follow it blindly. Don't interfere. Don't indulge into other practices. थैंक यू। कैन मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग आपने बोला, एक्सरसाइज, ये हार्ट हेल्थ को कितना हेल्प करता है हमारे लिए? देखिए ये तो मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग नॉट ओनली हार्ट हेल्थ, ये तो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, या आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इट्स वेरी साइंटिफिक, और इसके ऊपर स्टडीज होगी है पूरे वर्ल्ड में। आपको इवन हमारे इंडिया में कम है, बाकी इंटरनेशनल US में जो मेजर यूनिवर्सिटीज है, आप चाहे जॉन हॉपकिंस बोलो, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे इनका रिसर्च हो गया है कि मेडिटेशन
और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो काफ़ी, जो एबनॉर्मल जो आपके जो थॉट्स हैं वो कम हो जाते हैं, आपको जो प्रॉपर थॉट्स आपके लिए इंक्रीज होते हैं, यू कैन फोकस बेटर। ब्रेन के स्कैन्स किए उन्होंने बेस लाइन में और फिर ब्रीदिंग और मेडिटेशन के बाद में और योगा के बाद में, और they have seen there are a very good beneficial changes in your brain activity. So and same brain activity जो आपके हैं वही आपके हार्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना? You have a reduction in the heart rate, you have a reduction in the blood pressure, you have a reduction in the blood cholesterol, reduction in the blood glucose level. All these risk factor for the heart disease are on the beneficial side, on the lower side. तो आपको फ्यूचर में आपको हार्ट की रिस्क भी कम होगी, आपको ब्रेन अटैक की रिस्क भी कम होगी, आपको कैंसर तक की रिस्क कम होगी, आपको गट हेल्थ की भी रिस्क कम होगी। तो ये सारी की सारी जो डिजीज है उसके लिए एक वो वन मास्टर स्ट्रोक इज having a deep breathing exercise, meditation, and improve your overall well-being. Thank you. Uh, what stress relief methods are safe for someone with heart diseases? Like कौन से मेथड करने चाहिए उन्होंने स्ट्रेस कम करने के लिए हार्ट डिजीज के लिए? अच्छा, स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस कम करने, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया, नंबर वन इज ऑर्गेनाइज योर स्केड्यूल, है ना? आपको हमारी दिनचर्या को अपने को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि हम जब अनऑर्गेनाइज रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कोई भी हमने प्लान किया 7 दिन बाद में करना है तो उसमें कितना समय लगेगा उसको उतना ही डिवाइड करके यू स्टार्ट डूइंग इट रादर कीपिंग इट फॉर लॉन्ग। नंबर टू, अरे स्केड्यूल योर स्लीप properly, आप नींद के लिए बोल रहा। थर्ड इज योर स्केड्यूल योर रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी इन द मॉर्निंग, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। कई लोगों को टाइम नहीं मिलता तो वो लोग इवनिंग में करते, दैट इज ओके, बट प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग आवर्स, विच इज वेरी गुड। और इन द नेचुरल सराउंडिंग्स, मैं इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि नेचर मेक्स यू फील पॉजिटिव। इफ यू वॉक एंड एक्सरसाइज इन द ग्रीन सराउंडिंग्स, यू फील ऑलवेज फील बेटर, और उससे एंडोर्फिन भी ज़्यादा रिलीज होते हैं when you are exercising and when you are close to nature, and that improves your overall health. So schedule, and second is aerobic activity, third is your sleep habits, fourth your dietary pattern, have a healthy meal in a small 3 meals rather than having a heavy meal 1 or 2 times a day. And next is follow your habit or follow your hobbies, which you really like to enjoy in the evening hours. Schedule at least 25-30 minutes for reading or music or whatever you want, and spend a little bit of time with your family and friends on regular basis, whether it's a daily evening or in the weekends with your friends. So all these factors, your sleep, your exercise, your deep breathing exercise, your meditation, regular meditation, and your evening hours with your family and friends, following your hobbies, all these factors will minimize your stress. And also, in the 3 months or 6 months, have a break, go for a vacation, and Yeah. rejuvenate yourself with your family and friends. And that will all these factors will reduce the your stress level, and also make it a habit to have it on regular basis. अभी जैसे हमने डिस्कस किया, you follow it for a few days and then you skip it, just like a new year resolution. That doesn't work. Whatever you decide, you should be regular in following that. If you follow it for 30 days, 90 days, and keep on doing it, then definitely you are going to enjoy your overall healthy well-being, your good heart health, your good mental health, and overall health. थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आई ऑल्सो वांटेड वन मोर ओपिनियन व्यूअर्स के लिए कि अगर उनको रात को नींद नहीं आती तो बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं फॉर स्लीपिंग, तो इज दैट हार्ट फ्रेंडली इन स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप? देखो, हमेशा हम कहते हैं कि वी एज एन इंडियन, हमारे पास में साइकेट्रिस्ट ज़्यादा हैं, साइकोलॉजिस्ट कम हैं। और ये कि और हमेशा कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं यार साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो इट्स ए काइंड ऑफ टैबू। अमेरिका में 50% लोग दे कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट फॉर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड स्लीप डिसऑर्डर। हमारे यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट को बहुत कम लोग साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग, सबकी सब होता है सीधे दे एस्केलेटेड टू साइकेट्रिस्ट, वो सीधे हाई डोज में स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, एंड देन उनको हैबिट हो जाती है। तो वन शुड अवॉइड दिस प्रैक्टिस, and our country should get over from the psychiatrist wala part, go to more of the psychologist part, and that too early in their distress part. आपको जो एंजाइटी स्ट्रेस के जो एपिसोड्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, आपको नींद कम आती है, तो यू शुड हैव अ काउंसलिंग सेशन विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट।
अगर साइकोलॉजिस्ट के साथ में आपने अगर टाइम स्पेंड किया एंड दे कैन फाइंड आउट कि क्या क्या चीज़ आपको एंग्जाइटी ट्रिगर कर रही है, स्ट्रेस ट्रिगर कर रही है, और उसको जो मैनेज करने के वो तरीके बताते हैं, तो विदाउट मेडिकेशन यू हैव ए गुड चांस ऑफ गोइंग टू द स्लीप बेटर. और अगर उससे भी नहीं आएगा देन यू कैन स्टार्ट ऑन मेडिकेशन दैट विल लो डोजेस, और वो उन मेडिसिन को जिससे जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है. हमारा मानना है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस और स्लीप को काउंसलिंग से इंप्रूव किया जाए. मेडिसिन लास्ट रिसोर्ट है, एंड दैट टू वो मेडिसिन दी जाए जो कि आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म आपको स्लीप की पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करे और आप उसकी हैबिट की मीनिंग बना लें. लेकिन हमारे पास में क्या है, हमारे पास लोग कम है काउंसलिंग को. हमारे पास में जो ईजीएस्ट है कि कट से आप फिजिशियन के पास जाए, वो सीधे 1 मिनट में टैबलेट लिख कर बोलेगा ये ले लिया करो, जाके सो जाओगे. तो दैट इज नॉट अ राइट थिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, है ना. तो ये सब चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए विच आर हैपनिंग नाउ. साइकोलॉजिस्ट से भी आज कंसल्ट हो रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी जगह पे तो साइकोलॉजिस्ट होती नहीं है. कहाँ से, जो स्मॉल टाउन्स में दे डोंट हैव साइकोलॉजिस्ट. सीधे साइकेट्रिस्ट के पास में गए, टैबलेट लिखी या फिजिशियन ने टैबलेट लिख दी, एंड देन यू बिकम एडिक्टेड टू दैट, कीप ऑन टेकिंग इट, और रोकोगे तो वापस से आपको स्लीप की डिस्टर्बेंस हो जाएगा. तो वी नीड गुड नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड हैविंग अ काउंसलिंग सेशन विद दैट. Thank you so much. As we wrap up today's session, a heartfelt thank you to Dr. Sanjeev Sharma for his time and for shedding light on such a crucial topic. Your insights into how stress and anxiety impact heart health has been both informative and empowering. To our audience, thank you for being with us. We hope this discussion has not only informed but also inspired you to prioritize mental well being as a key part of the heart health. Remember, managing stress isn't just good for the mind, it is essential for the heart too. We'll see you next time with more expert conversations on staying heart healthy. Until then, take care of your heart and don't forget to follow us on our social media handles for more such updates and wellness tips. Thank you, Doctor. It was Yeah, really thank you very much, and thank you, Dr. Meena, for conducting very nicely. And we had a good session. Hope everyone got us some few useful tips out of that. And we'll have a much many more sessions in the future too. Thank you very much. Thanks for thank being you with so us. much. Thank you, Doctor.